प्रणाम। सभी को प्रणाम। जो बाहर है वो भी अंदर आ जाएं। हम इस सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के इस ऐतिहासिक सेमिनार का अंतिम सत्र, जिसमें अब केवल दो ही पेपर पढ़े जाएंगे। दोनों विद्वानों को हम 5 मिनट देंगे। 5 मिनट में अपनी बात यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा और तत्पश्चात हमारा एक अंतिम जो पैनल डिस्कशन है वो पैनल डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ दर्शी जैन को एंड पूर्णिमा मेहता। वो यहाँ आएगी। दोनों आएंगे और अपने पेपर प्रस्तुत करेंगे। दर्शी जैन एंड पूर्णिमा मेहता। Jai Jinendra सभी को. Myself Darshi Jain from Sumandip Vidyapit. I am representing myself for the paper title, that is the impact of nighttime fasting on chrononutrition profile and obesity pattern, a survey among Chauvihar practicing Jain. So we all know that Rati Bhojan Tyag already sir previously has informed about it and talked on that. So I will not discuss philosophical part of Rati Bhojan Tyag and Chauvihar, but shortly it means the renunciation of food after the sunset, and which align with the core principles of ahimsa, tap, and samyak charitra. So let me tell you how it's aligned with the ahimsa. So nighttime fasting increases the risk of harming unintentionally consuming the unseen microorganisms. While in tap, nighttime abstention is categorized under the bahya tap or external austerities. While for the Ratri Bhojan Tyag, Samyak Charitra, so both Chaw Vihar and Rati Bhojan Tyag are considered as an ideal code of conduct. So, Rati Bhojan Tyag is not only a spiritual vow and practices, but it is supported by the ancient wisdom and science.
So please coming on Chauvihar slide. So basically Chauvihar is a type of Ratri Bhojan Tyag where we avoid four type of food, where asan, pan, khadim and swadim we avoid. Now coming to the obesity slide. Uh, Obesity. Please switch on the obesity and pattern. So without wasting time, I want to talk on the issue problem currently today world is facing, that is the obesity. Why obesity? Because obesity is the main concern because of which other hypertension or heart related disease or blood pressure or sugar level are arising. So obesity is the main cause of others related disease. So basically, obesity is a excessive accumulation of fat overall the body. And why I'm choosing obesity? Because Chauvihar is directly linked with the health status, that is the BMI. So BMI basically is known as the body mass index, how your healthy weight is according to your height. Please come on the chrononutrition slide. So chrononutrition, please do fast because it is 33 slide. Yes, come. Yes. Now come on chrononutrition. So basically chrononutrition means the timing at what time we are consuming meal and how it's affecting our body's metabolism. Okay. So chrononutrition basically examines eating pattern in relation to our body clock or circadian rhythm, the body's internal clock that regulates physiological and metabolism function in our body. So this chrononutrition is basically a scientific terminology which defines from this which we can prove from the religious point of view about the philosophical ki avoid why Ratri Bhojan Tyag is important. So please come on the next slide, study background. So on in a survey NFHS, that is the National Family Health Survey. So they found that one in every four people are facing the overweight and the obesity. And in Gujarat, you will wonder, it's 22.6% of women and 19.9% of men are suffering from BMI greater than 25 kg per meter square, which falls under the obese category, not overweight category. And further studies are also conducted um, based on the time restricted eating, which involves an 8-hour eating windows followed by 16-hour fasting period. So it is scientifically there, but from our Chaubihar or from our Jain perspective, it is not there. So coming directly to the aim of my study, so I studied the relationship between chrononutrition profile and BMI pattern among Chaubihar practicing residing especially in the Vadodara city. So my hypothesis was individuals with a good chrononutrition profile are more likely to maintain a normal BMI. Now methodology. So it is an observational study based on the interview, and there were totally 30 participants randomly selected, age in between 18 to 40 years, where only strict Chauvihar people were the inclusion criteria. And I asked them questions based on the questionnaire already validated by the Verona author in Brazil. I converted it into the Indian language English and then I collected the data. So in CPQ, basically there are three parameters, that is the first eating event, morning latency and eating midpoint. And I assess their anthropometric measurements like height, weight, and their body fat percentage to the Carrara machine. And in statistical method, I use the confidence interval test, which measures the association between CPQ and the BMI. Now come on the observation slide. So I observe, yeah. So we observe 50% were male and 50% were female, aged in between 18 to 29 years around 30% and 30 to 39 years around 70%. So we found that normal BMI, that is the body mass index, were around 53% already people who are following Chaubihar, while 47% were overweight. So overweight is not a major concern compared to the obesity, but still a little bit concern it is. And the mean BMI between the overall 30 people, subject participants, it was around 22, which should be below 25. It signified that the BMI of an Chaubihar people are normal.
come to the next slide. So mean waist circumference was 0.78, which that means the waist circumference it should be below 0.78, and the value of mean waist circumference was normal, and waist hip ratio was also normal, while mean hip circumference was also normal, and mean total body fat percentage should be in between 20 to 25%, and you can see result we observed was 21%. And the main uh, previous slide, and the chrononutrition profile percentage of the Chobihar participant were come good. That was around 44.83%, and it was around moderate 55.7%, apart from poor chrononutrition profile. So the key and the mean clock time of the chrononutrition profile parameter first eating event found was around 8 to 12 p.m. and the eating midpoint was 1:26 p.m. and the late eating event, evening event was 6:41 p.m. Now coming to the result slide. So we observed that BMI increased with each additional minute delay in the first eating event. If a person is consuming their last meal after every minute delaying, so there is an increase in the BMI category. Please come on the key finding. So the key finding of this survey was CPQ good profile was there, and it indicates having the good BMI pattern among them, and it was the confidence intervals around 95%. That means 95% I am sure that this good chrononutrition profile is valuable for the BMI, and no obese category BMI was found. So at last, I would like to conclude that individual with good CPQ profile tend to have a normal BMI, highlighting its potential role in healthy weight status. सो इन शॉर्ट जिन लोगों ने चौबिहार फॉलो किया है उन लोगों का बीएमआई नॉर्मल आया है, दे वर फॉलोइंग अंडर द नॉर्मल हेल्दी कैटेगरी, विच प्रूव दैट कि चौबिहार रात्रि भोजन त्याग करने से आपका हेल्थ मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है. थैंक यू. जय जिनेन्द्र. Thank you very much. धन्यवाद. हालांकि इस विषय पर 2 पेपर यहाँ पढ़े गए. ये तीसरा पेपर था. चौवियार की महिमा तो जैनिज्म में बहुत है, पर चौवियार कैसे करना चाहिए वो आपने पहले इन लोगों को सिखाया था कि कब कितना टाइम में करना चाहिए, कैसे करना. तो खाली द्रव्य चौवियार ही हुआ, भाव चौवियार नहीं उसमें, तो उसका शरीर पर बहुत असर नहीं पड़ता है. मैं करीब 50 साल से चौवियार कर रहा हूँ, उबला हुआ पानी पीता हूँ, फिर भी वजन घटता नहीं है. तो ये साइंटिफिकली और गहन रूप से करना पड़ेगा कि चौवियार का रियल मतलब क्या है, उसको कितने बजे तक आपको भोजन खत्म कर देना है, भोजन के बाद पानी पीना है या नहीं पीना है, सूर्यास्त के पहले कितने टाइम पहले भोजन कर लेना है, सुबह कितने बजे भोजन करना है, वो सारी चीज पहले उन लोगों को दिखाने बतानी पड़ेगी, तभी चौवियार का लाभ है. नहीं तो एंड मोमेंट पर, एंड मौके पर चौवियार कर लो आप, तो उसका शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन विपरीत असर भी पड़ता है. तो ये थोड़ा ध्यान में रखकर आप नेक्स्ट जब इस प्रकार का सर्वे करें तो उसको ध्यान में रखेगा. नहीं, बात सही है. जी. प्रोफेसर गणेश कावाडिया. प्रोफेसर गणेश कावड़िया.
जय जिनेंद्र सबको। जेएस ग्रुप और प्रोफेसर कछारा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और ऐसा लगता है कि मैं पूरे मैं ऑड मैन आउट हूँ। नीचे जितने भी अभी पेपर रीडर थे सब यंग थे, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। और अभी तक जितनी भी बात हो रही थी वो व्यक्ति विशेष आत्मा और उस पे बात हो रही थी। पूरे 2 दिन में अर्थशास्त्र की बात एक बार आई थी कि महाप्रज्ञ जी ने महावीर का अर्थशास्त्र लिखा। मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ और बड़ी चिंता मैं हूँ कि अर्थशास्त्र का स्वरूप कैसा बनना चाहिए। व्यक्ति के रूप में तो महावीर का अर्थशास्त्र ठीक है कि एक व्यक्ति को क्या उपभोग करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है, लेकिन पूरा अर्थतंत्र कैसा हो, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं और ये बात स्पष्ट रूप से आई है कि हमें रीडिफाइन करना चाहिए जैनिज्म को भी, और शायद अर्थशास्त्र को भी रीडिफाइन करना चाहिए कि जिससे हम जो वास्तविक लक्ष्य हैं हमारे वो पा सके। क्योंकि मैं थ्रू आउट प्रोफेसर रहा, इकोनॉमिक्स का पढ़ाया, रिसर्च किया, और ये चिंता हमेशा बनी रही। और आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव अगर हम देखें तो एडम स्मिथ से आई है। और एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, और उसके आधार पर एक पूंजीवाद का कंसेप्ट बना। और उस पूंजीवाद के कंसेप्ट से ये आया कि स्वतः ही व्यक्ति के पास 2 चीजें ऐसी है जिससे स्वतः ही राष्ट्र की संपत्ति और उस व्यक्ति की संपत्ति भी अधिक होगी। 2 चीजें उन्होंने कही, और वो 2 चीजें हैं सेल्फ इंटरेस्ट और इनविजिबल हैंड्स। यानी व्यक्ति का स्वहित और अदृश्य हाथ, ये 2 चीजें व्यक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण करेगी या उसको इस तरह से रेगुलेट करेगी कि उसकी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो राष्ट्र की संपदा में वृद्धि करेगी, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने आप बन जाएंगे या और बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अब यहाँ जो इनविजिबल हैंड का जो एडम स्मिथ का इंटरप्रिटेशन था, वो इनविजिबल हैंड मुझे लगता है मोरालिटी थी। मोरालिटी, नैतिकता। यानी अर्थशास्त्र में अगर नैतिकता जुड़ी रहेगी तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आज का जो विकृत ढांचा बना है शायद वो नहीं बनता। लेकिन तकलीफ आई कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद आया, साम्यवाद आया, लेकिन वो सब अर्थव्यवस्था की उस कसौटी पर कि हमारा आर्थिक विकास संपोषित होना चाहिए, पर्यावरण की संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, आर्थिक असमानता को खत्म करने वाला होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी ग्रोथ होना चाहिए, वो न साम्यवाद दे पाया, न समाजवाद दे पाया, और न पूंजीवाद दे पाया। न दे पाया पर चिंता तो थी हर व्यक्ति की कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो समावेशी हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो। तो हमने वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया, WTO बनाया, ऐसी कई सारी इंटरनेशनल संस्थाएं बनाई जो हर देश की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करे। किस बात के लिए मॉनिटर करे? कि विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल, गरीबी हटाओ, और ये सब बहुत पीछे के रह गए हैं। अब तो यूनिसेफ ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं। इसका मतलब आर्थिक विकास नहीं चाहिए, ऐसा आर्थिक विकास चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। हम भटक गए, क्यों भटक गए हैं इसकी चिंता करना चाहिए। और उसके लिए थोड़ी सी मैं बात इकोनॉमिक्स की करूंगा। इकोनॉमिक्स में केवल 3 चीजें आती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। और ये कौन तय करेगा? मार्केट तय करेगा। मार्केट एक एजेंट है जो कुछ नहीं करता है, इन तीनों चीजों को एफिशिएंटली डिलीवर कराता है। कौन सा मार्केट? जो फ्री मार्केट हो, स्वतंत्र मार्केट हो और कंपिटिटिव मार्केट हो। यानी हमें पूर्ण प्रतियोगिता और स्वतंत्र बाजार चाहिए। कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, ऑटोमेटिकली वो ऐसी एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करेगा। संसाधनों की जो उपयोग है वो एफिशिएंट होगा, कंजम्पशन में भी, प्रोडक्शन में भी। कब? जब बाजार प्रतियोगी हो। लेकिन हकीकत ये हुई कि और जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते गए, बाजार कंपिटिटिव रहा ही नहीं, बाजार ओलिगोपोली हो गया। और ओलिगोपोली की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्लॉयटेशन। ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोली मार्केट की बेसिक
जो कैरेक्टर है वो एक्सप्लॉयटेशन है। और जो एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर बाजार बने, वो अर्थव्यवस्था समावेशी कैसे हो सकती है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील कैसे हो सकती है। और इसलिए दुनिया भर के अर्थशास्त्री आजकल इस बात के लिए चिंतित हैं कि ये अर्थशास्त्र जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा है वो कहीं ऐसी अर्थव्यवस्था न दे दे जो और ज्यादा संकट ला दे, इसलिए इसको रीडिफाइन करना चाहिए। और इसके लिए एक निक मार्क्स करके आया, कार्ल मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, निक मार्क्स स्टेटिशियन था, और स्टेटिशियन होने के कारण उसने कई सारे राष्ट्रों के डेटा, कंज्यूमर्स के डेटा कलेक्ट किए, और डेटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस कहा और कहा कि इकोनॉमिक्स में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि वो दुनिया में हैप्पीनेस ला सके, प्लेजर ला सके। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है, प्लेजर आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो मादा ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, और इसलिए इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन करना चाहिए। और क्यों मादा नहीं है, यानी वो जैन धर्म नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कहीं और जाके देखना पड़ेगा। और देखने में उसने कहा कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी को मेजर करने का, वो एफिशिएंसी हम किसके संदर्भ में मेजर करते हैं, कैपिटल के संदर्भ में। फिर कार्ल मार्क्स के ने कहा कि नहीं, कैपिटल ठीक नहीं है, लेबर के संदर्भ में करो। तो हमने लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाली, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी निकाली, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेयर है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसको भूल गए। और सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। प्रकृति ने हमारे को कुछ संसाधन दिए हैं, वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी कैपिटल से नहीं, कैपिटल प्रोडक्टिविटी से नहीं निकालो, लेबर प्रोडक्टिविटी से भी नहीं निकालो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से निकालो कि 1 रुपए के उत्पादन में हमने कितने प्रकृति के संसाधन को खोया। अगर वो हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो शायद हम ज्यादा, जैनिज्म की तो बात ही नहीं आ पाई है सर। नहीं तो इकोनॉमिक्स की बात नहीं तो विरोधाभास कैसे आएगा। तो अब ये बात आ रही है कि हम किस तरह से देखें। तो प्रश्न आता है कि शायद जैनिज्म में वो क्षमता है, लेकिन तकलीफ ये है कि जितनी भी जैनिज्म की इंटरप्रिटेशन होती है, व्याख्या हो रही है, वो आत्मा से रिलेटेड हो गई है। और दुनिया ये समझने लगी है कि जैनिज्म का संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो संसार को असार मान के चलता है। संसार असार है, और इसलिए अगर संसार असार है तो इकोनॉमिक्स की कहीं गुंजाइश नहीं है। और हकीकत में अगर हम जैनिज्म में आगमों और आदि का अध्ययन करें तो कोई औपचारिक अर्थशास्त्र की व्याख्या नहीं मिलती है। महाप्रज्ञ जी ने भी काम किया और ने भी कुछ काम किए हैं, उसमें व्यक्ति के उपभोग को किस तरह से डायरेक्शन करें, व्यक्ति की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे डायरेक्ट करें, ये तो आया, लेकिन कैसा अर्थतंत्र डेवलप करें वो नहीं आया। तो अब धीरे धीरे अगर आपको एनालाइज करें तो 2 चीजें मुख्य रूप से हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। ये दोनों अटल है, और इन दोनों के बीच में जीवन है, जिसको आप संसार कह दो, जीवन कह दो। और इस जीवन को निखारने का काम अर्थशास्त्र का है, इस जीवन को निखारने का काम जैनिज्म का भी है। जैनिज्म भी चाहता है कि ये जीवन निखरेगा तो जाके मोक्ष मिलेगा, और जीवन को निखारने के लिए आप ऋषभदेव भगवान को देखो, उन्होंने 18,000 साल पहले जीवन की कलाएं बताई, नृत्य की बात की, संगीत की बात की, उन्होंने लिपि की बात की, और आर्थिक क्रियाओं के लिए अच्छी मच्छी सब वाणिज्य कैसी क्रियाएं होनी चाहिए कि जो तीर्थंकर आपको जीवन की कला सिखाए वो जीवन असार कैसे हो सकता है। इसका मतलब जैनिज्म में ऐसी चीजें हैं जिनको रीडिफाइन करके एक अर्थशास्त्र का तंत्र डेवलप करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कुछ यहाँ जैन धर्म के सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। अहिंसा बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां अहिंसात्मक होनी चाहिए। और अगर हम इस बात को मान लें तो हमारा उत्पादन उपभोग नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपरिग्रह है, और इसी अपरिग्रह के आधार पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि हमें हर व्यक्ति के, यानी अपने आप को समाज का या इस परिवार का ट्रस्टी मानकर काम करना चाहिए,
जो कुछ संपत्ति हमें मिली वो हमारी नहीं है, बल्कि हमें उसको ट्रस्ट के रूप में काम करना चाहिए। ये महावीर, ये जैनिज्म से गांधी जी ने डेवलप किया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और अगर ये बात सही बने तो संचय पर नियंत्रण आना चाहिए और ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो सतत कंटिन्यूटी पर आधारित हो। दान की बात आती है तो हम ये कहें कि स्वैच्छिक दान आना चाहिए, और स्वैच्छिक दान का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाएगी, स्वतः वितरण की, सामाजिक न्याय की बात आ जाएगी, सम्यक आजीविका, जीविका कैसी आनी चाहिए, सम्यक आजीविका मतलब नैतिक तरीके से इनकम को अर्न करें। इनकम कितनी अर्न करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम साध्य इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो साधन है वो कितना पवित्र है। अगर साधन पवित्र है तो साध्य भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। बहुत दुनिया बात करती है गरीबी की, और गरीबी अभिशाप है, और पूरी की पूरी इकोसिस्टम गरीबी को लड़ने के लिए है, जबकि कर्म सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ अमर्त्य सेन हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला, और उन्होंने कहा है कि गरीबी दुर्भाग्य नहीं, वितरण की प्रॉब्लम है, और वितरण का प्रॉब्लम इसलिए है कि मार्केट डिस्टॉर्टेड है। और कई सारी जैनिज्म को चीजें ले तो हमारे को पूरा एक अर्थतंत्र डेवलप हो सकता है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वर्तमान सरकार ने जैनिज्म से लेके पूरी दुनिया को अर्थतंत्र की कई सारी बातें बताई। अभी G20 में आप देखें, मोदी जी ने जो स्लोगन दिया, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, नॉट जैनिज्म। 5 साल पहले उन्होंने लाल किले से भाषण में कहा कि अहमदाबाद के पास माउड़ी है, वहां एक जैन संत ने 100 साल पहले लिखा कि पानी का अगर ऐसे ही दुरुपयोग हुआ तो पानी किरानों की दुकानों पे मिलेगा। आज वो चीजें सही हुई है। और अगर आप देखें, इस साल या 3 साल पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, वोकल फॉर लोकल की बात कही, ये सब जैनिज्म में से निकलता है। और इन स्वरूप से अगर हम अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र बनाने की कोशिश करें तो शायद एक ऐसी अर्थव्यवस्था उभरेगी जिसको हम नैतिक कैपिटलिज्म कहें। और अगर नैतिक कैपिटलिज्म की बात आ जाएगी तो शायद ये जितने भी संकट अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, और हम एक समतावादी, समाजवादी, समतावादी, समावेशी विकास जो पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदन हो, एक ऐसा ढांचा डेवलप कर सकें। लेकिन ये सब काम आने वाले रिसर्चर के लिए चैलेंज वाला है, और ये अगर करें तो शायद हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकें जहाँ इस तरह के युद्ध की बात नहीं हो, चारों तरफ युद्ध, ये सब चीजें आ रही है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। थैंक यू सो मच, मुझे मौका मिला, मेरा ये पहला मौका था अध्यक्ष के साथ। थैंक यू गणेश जी। प्रोफेसर गणेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। आपने जो अर्थशास्त्र पर जो बातें कही वो अत्यंत उपयोगी भी है और भारत के अर्थतंत्र को सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकेंगे। बहुत बहुत आभार सर। जहां आपने कैपिटलिज्म की बात की और नैतिक कैपिटलिज्म की बात की, तो कैपिटलिज्म को अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ते हैं कि दुनिया में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन बढ़ा के कंपटीशन से बढ़ाओ। कंपटीशन, एक दूसरे को मात देकर प्रोडक्शन बढ़ाओ, और अगर मात देने पे कोई फीका रह जाए तो मर्ज कर लो, उसको मिला लो अपने आप में। ये 3 चीजें हम कैपिटलिज्म में पाते हैं। और 1 मिनट पूरी कर लूं मैं अपनी बात। तो और आपने जो अपरिग्रह की बात कही कि अपरिग्रह बेस्ड अगर इकोनॉमिक्स होगी तो कहेगा कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, आप इच्छाओं से कर रहे हो। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छा वो आगा समानंतिया, जरूरत मात्र को पूरी करो तो कोई स्कैरसिटी नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के पास इतना रिसोर्सेज है कि दुनिया की जरूरत को पूरी कर सकता है, लेकिन इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी नहीं। फिर कंपटीशन की बात करने के बजाय कोऑपरेशन करो। जहां पर जो ऐसा साधन उपलब्ध है वहां पर वो उपजाओ, जहां पर जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है वगैरह वगैरह, सब ज्यादा नहीं कहूंगी। और मर्जिंग की बजाय मोटिवेट करो, उसको थोड़ी मदद करके उठा दो अगर उसके पास ये नहीं है तो। आपने अमर्त्य सेन को भी कहा, आपने सही कहा, गरीबी पर बहुत उन्होंने विचार किया, बहुत पढ़ा, और उन्होंने ये कहा कि भारत गरीब इसलिए नहीं हो सकता कि धन नहीं हो, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, नागरिकों में क्षमता संवर्धन होना चाहिए, तब
भारत ये होगा। तो ये आज आपने जो हमें इस बात के लिए जगाया है, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और बहुत सारी और भी अमर्त्य सॉरी कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने नाम सुना होगा। कौटिल्य पहले सूत्र में कहता है मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। अर्थ क्या है? मनुष्य जहां पर रहते हों और वहां जो भूमि है, तो जो रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक पर्यावरण के, उनसे मनुष्य जो उत्पादन करके प्राप्त करता है वह अर्थ है। अब आज क्या हो गया कि जो उत्पादन कर रहा है वो मेरा स्वामित्व भाव करता है। आपने ट्रस्टीशिप की बात कही, और इसके भी आगे कि पृथ्वी जल तेज वायु सबके लिए है, तो उससे जो भी उत्पादन हो, मैंने थोड़ी मेहनत लगा दी, मैंने थोड़ा पैसा लगा दिया, एक इंडस्ट्री खोल दी, तो मैं उससे उसके उत्पादक की मालिक कैसे बन गई? जो कुछ मैंने रॉ मटेरियल प्राप्त किया पर्यावरण से, तो वो जो उत्पादन है वो सबके लिए होना चाहिए। अगर ये भावना होगी अपरिग्रह की अर्थशास्त्र में, तो निश्चय ही हम कौटिल्य को भी समझ पाएंगे और अर्थशास्त्र का एक ये कर सकेंगे, मैं समझती हूँ। तो थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू मैडम। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आपने सिंसियरली सुना, और ये समय की मर्यादा के कारण कई सारी चीजें आपकी मैं नहीं ले पाया। मैं नहीं आपकी बात को कह रहा हूँ। कौटिल्य ने 18 वॉल्यूम लिखे, 18 वॉल्यूम लिखे इकोनॉमिक्स के, और उनके वॉल्यूम को पढ़ो तो वो केवल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है कि उपभोक्ता के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, एक राजा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। राजा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेनापति के कोड ऑफ कंडक्ट से अलग होंगे। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं, नैतिकता है। और नैतिकता का अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में समावेश होगा तो कोई तकलीफ नहीं। और जो कंपटीशन आप कह रहे हो, गला काट कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूर्ण प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता में इतने फ्रिगमेंटेड आउटपुट होते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन तब होगा जब ओलिगोपोलिज्म आएगा। तो मैं ऐसे कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं जो ओलिगोपोलिज्म लाए या मोनोपोली लाए। वर्तमान में कैपिटलिज्म की आलोचना इसलिए हो रही है कि वो ओलिगोपोलिज्म ला रहा है मर्जर और एक्विजिशन के माध्यम से। हमें कौन सा कैपिटलिज्म चाहिए? जो मोरालिटी का हो। जब मोरालिटी की बात आ रही तो एक्सप्लोटेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो कैपिटलिज्म आप कह रही है वो एक्सप्लोटेशन पर बेस्ड है। तो एक्सप्लोटेशन हटाने के लिए मैं नैतिक पूंजीवाद की बात कह रहा हूं। और जहां आप आवश्यकता की बात कह रहे हो, इसीलिए जैनिज्म को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ना चाहिए कि आवश्यकताओं का दमन नहीं करें। इसके लिए हमारा सीमाकरण हो, लिमिटेशन हो कि हमें क्या खाना है। और इसके लिए हमें यह भी देखना होगा कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है, हम क्या बना सकते हैं और क्या हमें उपभोग करना चाहिए फ्रॉम मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, अब प्रश्न नहीं। अब हमारे बीच में प्रोफेसर ज्योति बाबू जैन जी हैं, जो इसी यूनिवर्सिटी के प्राकृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। और यहाँ आपने देखा कि बहुत सारे युवा विद्वानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, बहुत अच्छी तरह यहाँ पेपर प्रेजेंट किए हैं। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करूँगा। अपना पेपर, क्या नाम है पेपर का, आप ही बता दीजिए। द्रव्य विज्ञान में आश्रव तत्व, इस विषय पर यहाँ कुछ कहेंगे। नमो जिणानम। सम्मानित मंच एवं सभी वैज्ञानिक को मैं नमन करता हूं, और बहुत ही अभिभूत हूं मैं आपके सभी इस महासम्मेलन में सम्मिलित होने का जो अवसर में प्राप्त हुआ, और हमारे विभाग और विश्वविद्यालय को ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिभूत हो रहा हूँ। बस मैं थोड़ी सी आज चर्चा जो करना चाहता हूँ वो ये था कि द्रव्य विज्ञान में आश्रव तत्व, ये पूरी दुनिया में, विश्व में दो ही पदार्थ हैं, दो ही द्रव्य हैं, दो ही मुख्य रूप से तत्व हैं। एक देखने वाला और एक दिख रहा है। दो तत्व दिखते हैं। एक देखने वाला है जो जीव तत्व है, और जो दिख रहा है वो सब अजीब है। इसके अलावा
और क्या है, इसके मिश्रण से क्या होता है, जो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और जो मोक्ष तो लक्ष्य है, हमारा ध्येय है प्राप्त करना। हमारे जैन सिद्धांतों में जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों के आधार पर उनके रहस्यों को समझने के लिए ग्रंथों की टीकाएं आदि हुई हैं। द्रव्य, तत्व, पदार्थ और तो इन द्रव्य को जो है जीव तत्व है, क्षेत्र माने द्रव्य को जीव आदि जो द्रव्य हैं उनको अपेक्षा से सत्संख्या आदि के अपेक्षा से द्रव्य कहा जाता है। क्षेत्र की अपेक्षा से उसी द्रव्य को अस्तिकाय कहा जाता है। काल की अपेक्षा से पदार्थ कहा जाता है और भाव की अपेक्षा से तत्व कहा जाता है। तो इन तत्वों में जो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व इस परिभ्रमण का, संसार का मूल है। आश्रव से क्या होता है, आश्रव माने हमारे कर्मों के आने का जो द्वार है वो आश्रव कहलाता है। और आश्रव होता किससे है, राग और द्वेष से, कभी खुशी कभी गम। ये वर्तमान की जो स्थिति रहती है, जो हम देखते हैं, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है। जो अगर बुरा लगता है तो अशुभ आश्रव हो गया, और अच्छा लगता है तो शुभ आश्रव हो गया। तो ये आश्रव प्रति समय प्रत्येक जीव के चल रहा है। आश्रव से बंध होता है, बंध का जब उदय होता है तो उदय में हम उससे राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं तो पुनः आश्रव होता है, बंध होता है और उसका उदय होता है। ऐसे ही हमारा संसार का जो चक्र है वो चक्र चलता रहता है। इस संसार के चक्र को समाप्त करने के लिए इस आश्रव की व्यवस्था को हमें समझना होगा। चलें, आश्रव किसे कहते हैं, वो मन वचन काय के योग को आश्रव कहते हैं। अब योग तो जहां तक हमने अभी तक सुना है तो योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का युज धातु से बनता है, समाधि है या ध्यान है। लेकिन यहाँ तो योग से तात्पर्य क्या है, क्रिया। जो मन वचन काय की जो क्रिया होती है उसे योग कहते हैं। देखिए, ये हमने केवल संदर्भ जो आगमों के दिए हैं और इसका हमें चर्चा करना थी इसके ऊपर, इसलिए मैंने केवल सूत्र मात्र अभी आपके सामने रख रहा हूं। और ज्यादा समय अपने पास है नहीं, इतनी हम व्याख्या करें, आप लोग सब विद्वान हैं। आगे चले तो आश्रव के द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव दो भेद हैं। मन भाव माने परिणाम जो हम करते हैं, जैसे परिणाम करते हैं उन परिणामों से जो द्रव्य कर्म आते हैं और कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं वो द्रव्य आश्रव कहलाता है। और ये सूत्र हमने अपनी प्राकृत गाथाओं से दिए हैं। आगे चलें क्योंकि हमें समय बहुत कम दिया है। और आश्रव के कारण क्या हैं, आश्रव किन कारणों से होता है, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, योग और कसाय के निमित्त से आश्रव होता है। देखिए, लेकिन मिथ्यात अगर समाप्त हो गया तो फिर आश्रव नहीं होगा, उससे संबंधित आश्रव नहीं होगा। लेकिन हमारा अविरत से माने अविरत नहीं है, हमारा 4 प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग नहीं है, तो हमारा आश्रव हो रहा है। हम भले ही नहीं खाएं क्योंकि अभी आप विरत नहीं हो। और जब विरत हो गए तो अब उससे जो आपने छोड़ दिया, हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, क्षेत्र का परिमाण कर लिया, तो जो उस क्षेत्र के बाहर जो कार्य हो रहे हैं उन पापाश्रव से हम बच सकते हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ ऐसी हैं कि उसको मर्यादा में कर लेने से, सीमा कर लेने से, उपवास आदि की व्यवस्था बताई है। उपवास के माध्यम से अभी हमारे भंडारी साहब ने कहा कि उपवास के ऊपर जो वैज्ञानिक शोध हुआ है उसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए गए हैं। और प्रमाद जब समाप्त हो जाता है तो अपमत्र दशा जब हो जाती है तो प्रमाद संबंधी आश्रव खत्म हो जाता है। योग जब तक है, जब जब माने तब तक अयोग केवली नहीं बन सकते हैं, जब तक योग संबंधी आश्रव चलता रहता है। आगे चलेंगे थोड़ा। और शुभाश्रव अशुभाश्रव क्योंकि बहुत हैं, 57 भेद भी हैं। और इनकी जो सभी को समान आश्रव नहीं होता, सभी के समान बंध नहीं होता, सभी के माने जैसी स्थिति होती है, जितने प्रेशर से हम परिणाम करते हैं
तीव्र है, मंद है, ज्ञात, हमें उसके बारे में साफ जानकारी नहीं थी, हमसे अपराध हो गई, गलती हो गई, तो उस हिसाब से ही आपके आश्रय होगा। ज्ञात भाव है, अज्ञात भाव है, और वैसे जो इसके आश्रय 108 प्रकार का है, तो 108 प्रकार का जो आश्रय मुख्य रूप से बताया है, तो उस 108 प्रकार के आश्रय से बचने के लिए हमारे यहाँ जाप की व्यवस्था है। 108 दाने होते हैं, मणि होते हैं माला में, तो 108 प्रकार, 108 मंत्रों का हम जाप करते हैं कि हमारे वो 108 जो आश्रयों के द्वार हैं, वो 108 आश्रयों के द्वार बंद हो जाएं। प्लानिंग होती रहती है। सबसे ज्यादा जो आश्रय होता है वो मानसिक होता है, वो मानसिक आश्रय भी उतना ही है, वो मन से हो या वचन से हो या काय से हो, ऐसे तीनों की एकता नहीं चाहिए। आप सोचे कि योग, योग का मतलब आप ये मत समझना कि हमने ये कहा कि भाई देवदत्त है, चारुदत्त है और भावदत्त है, भोजन करता है, तो भोजन करते हैं, तो वो सब तीनों अलग अलग भोजन करते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों मिला करके भोजन कर रहे हैं। तो सबका जो है अगर मन से हो रहा है तो भी बराबर 100% अपने को आश्रय हो रहा है, वचन से हो रहा है तो 100% हो रहा है, और काय से हो रहा है तो भी अपना 100% आश्रय हो रहा है। तो आश्रय के कारण है 108 प्रकार के बताएं। समरंभ माने उसके संबंध में विचार करना, उस कार्य को आरंभ करना, समरंभ, समारंभ, आरंभ, प्रारंभ कर देना योग से होता है, मन से, वचन से, काय से होता है, और फिर कृत से होता है, बहुत स्वयं करते हैं, स्वयं उस पाप को करते हैं, और कुछ बहुत अच्छा किया, अब किसी ने मारा दूसरे ने है और हमने केवल कह दिया अच्छा किया, अनुमोदना करके हमने उसको और उस आश्रय को हम कर लेते हैं। कृत, कारित और अनुमोदना, ये जो होते हैं 4 प्रकार के कसायों के निमित्त से होते हैं। ये सारे पाप जो होते हैं क्रोध के निमित्त से होते हैं। गुस्से में हम झूठ भी बोल देते हैं, हम हाथ पांव तोड़ देंगे, लेकिन हाथ पांव तोड़ेंगे तो फिर सुधारेगा कौन? तो ये ऐसा कह देना क्रोध के, मान के निमित्त से होते हैं। अब देखो क्या कहें, क्या अभी हम यही सुन रहे हैं सारे, अभी ज्ञानावरण बहुत लंबा है, आश्रय का तो अंत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे ही चल रहा है हमारा तो आश्रय, माने ज्ञानावरणी कर, अब यहीं बैठे हुए हैं, अभी हम कर रहे हैं, और क्या सुना रहे हैं, बहुत सुन लिया आप क्या सुन सुन के थक गए, यहाँ ज्योति बाबू को और खड़ा कर दिया। तो ये सब माने यहाँ यही हम अभी कौन सा आश्रय करने लग रहे हैं, क्या हो रहा है? तो ये जो है सारी जो व्यवस्थाएं हैं, बस भैया आप बंद कर दो, आप आगे मत खोलना। और जो है आपने जो समय दिया और आप लोगों ने जो इतना माने कष्ट उठा करके इतनी गर्मी में आप यहाँ पधारे हैं, और आपने अपने ज्ञान से इस झीलों की नगरी में ज्ञान की जो गंगा बहाई है वो अद्भुत है, अपूर्व है। और यहाँ वैसे केवल ये जो उदयपुर है सर, मुझे माने प्रारंभ में कहना था, ये जो केवल ये नहीं है, सुंदर ही नहीं है, यहाँ का शौर्य भी है, यहाँ की शक्ति भी है, यहाँ की भक्ति भी है, सब देखने का, यहाँ की चीज़ें बहुत सुंदर है। और आप लोगों का पदार्पण हमें बहुत सुंदर लगा, और आशा है ऐसे और भी समय समय पर आते रहेंगे। आपने समय दिया, अभिभूत हूँ, धन्यवाद। ज्योति बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आश्रव की बात कही। अब ज्ञानाश्रव तो होता नहीं है कि होता है, 2 दिन से ज्ञानाश्रव हो रहा है, उसका बंद होगा कि नहीं वो पता नहीं है, उसकी निर्जराई हो जाएगी तुरंत यही प्रॉब्लम है हम लोगों का खैर, मैं ज्यादा मजाक नहीं करूंगा। ये नगर है उदयपुर, यही डीएस कोठारी नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर विज्ञान में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी बात कही। यहाँ कछारा साहब है, जो विगत कई वर्षों से जैन धर्म एवं विज्ञान की बात कर रहे हैं। पारसमल जी और अन्य विद्वान भी हैं हमारे साथ। नरेंद्र भंडारी साहब हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से एक यज्ञ का प्रारंभ किया है कि विज्ञान के दृष्टि से हम जैन धर्म को देखें। अभी भी ये मेरे मन में प्रश्न उठता है कि धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए या विज्ञान को धर्म की दृष्टि से। ये
बात बहुत ही गंभीर है, फिर भी पिछले कई वर्षों से यह प्रयत्न होता रहा है कि हम अ, धर्म के सिद्धांतों को विज्ञान के सिद्धांतों के साथ तुलना करके उसमें क्या सत्य है क्या मिथ्या है उसका विचार करके जगत के सामने रखें। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय पर जो भंडारी साहब ने एक आर्टिकल तैयार किया था और बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था, वो सभी को अवश्य में पढ़ना चाहिए, जिसमें जैन धर्म का फिजिक्स का जो बात है उसको बहुत ही अच्छी तरह उसमें उन्होंने बताई है। यहाँ बहुत सारी बातें हुई 2 दिन में, और बहुत विचार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत किए। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार भी यहाँ हुए, और जिस पर आगे आने वाले समय में विद्वानों को भी प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सेमिनार रहा है मेरी दृष्टि से, और ऐसे सेमिनार करने में जो श्रम लगता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ये श्रम बहुत ही अमूल्य होता है, और वो श्रम भंडारी साहब ने और उनकी टीम ने किया है, तो उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे कल शुरुआत की हमारे अनन्य मित्र प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन ने, और बहुत ही सुंदर शुरुआत की कि जैनिज्म में हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और किस तरह से अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारे जैन दार्शनिकों का नाम दिया। प्राचीन दार्शनिकों की बात करते हुए उन्होंने अनेक दार्शनिकों की बात कही, उमा स्वाति जी से लेकर के उपाध्याय यशो विजय जी तक के, और आधुनिक युग के दार्शनिकों की बात भी कही कि सुखलाल जी से लेकर के वर्तमान में प्रोफेसर सागरमल जी जैन जैसे दार्शनिकों की बात कही। लेकिन मैं एक प्रश्न यहाँ यह रखना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से हम जैन धर्म के विद्वानों की स्थिति का चिंतन करें या आकलन करें या समीक्षा करें, तो हमारे पास आज इस समय में क्या धर्मचंद जी जैसे और कोई विद्वान है? मैं ये आपके सामने प्रश्न रखता हूँ, जवाब की अपेक्षा नहीं है मुझे, पर यह एक बहुत ही बड़ा चिंतनीय प्रश्न है कि हमें भारत में यदि मोदी जी को खड़ा कर दिया जाए तो वो कहेंगे कि 150 करोड़ लोग भारत में हैं, पर 150 धर्मचंद जी नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे सामने। हमने पंडित सुखलाल जी को देखा, हमने पंडित बेचरदास जी को देखा, पंडित हीरालाल अम, शेठ को, हरगोविंद दास शेठ को देखा। मैं हरगोविंद दास शेठ की बात कई बार कहता हूँ। उन्होंने 1935 में, हालांकि काम तो 1920 में शुरू कर दिया था, 1935 में पाइया सद्दा महनवों की पूर्णाहुति की, और पाइया सद्दा महनवो 1935 में छपकर प्रकाशित हो गया था पूर्ण रूप से। 1935 के बाद हम दूसरा परिवर्तित संशोधित पाइया सद्दा महनवो प्रकाशित नहीं कर पाए हैं। पाइया सद्दा महनवो अभी भी उसको संवर्धित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 1935 के बाद बहुत सारे प्राकृत ग्रंथ जो अप्रकाशित थे वो प्रकाशित हुए हैं, तो अनेक शब्द उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो पूरे जैन धर्म की वर्तमान स्थिति को देखें हम तो सेंसेक्स के हिसाब से 45 लाख है, लेकिन हम मानते हैं कि पूरे देश में करीब 2 करोड़ जैन होंगे। जब अब नया सेंसेक्स होगा तो ये निष्ठापूर्वक होगा, तो ये
संख्या बाहर आएगी कि 2 करोड़ जैन होंगे, लेकिन 2 करोड़ जैन में कोई एक जैन दूसरा ये हीरा अपने हरगोविंद दास त्रिकमचंद सेठ जैसा कोई नहीं हो पाया। ये हमारी दारिद्र्यता है, विद्वानों का नहीं बन पाना वो सबसे बड़ी दरिद्रता है जैनों की। हम हर बार कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही करूँगा मैं, बातें तो बहुत सारी हैं। हम हर बार कहते हैं कि जैन में धनवान बहुत हैं। गौतम अदानी जैन है, सुधीर मेहता जैन है, और भी कई ऐसे बड़े बड़े जैन हैं जिनका नाम भारत के धनवानों की यादी में आता है, सूची में आता है। लेकिन जैन धर्म एक दूसरी दृष्टि से धनवान है। हमने धनवान तो पैदा किया लेकिन विद्वानों को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी दारिद्र्यता, दूसरी दारिद्र्यता है। जैन धर्म एक दूसरी दृष्टि से धनवान है। जैन धर्म के पास करीब 25 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स है। मतलब पांडुलिपियों की संख्या पूरे देश में आज 1 करोड़ की है। 1 करोड़ पांडुलिपियों में से 25 लाख पांडुलिपियां केवल जैन धर्म की है। एक तरफ राम है, एक तरफ गाम है। मतलब बाकी के सभी धर्म, सभी विधाएं, सभी प्रकार की फैकल्टीज की मैन्युस्क्रिप्ट्स की गिनती की जाए तो 75 लाख होगी, और केवल जैन धर्म के पास 25 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स है। ये बहुत बड़ी बात है। और विश्व में, मैं ये मतलब अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में किसी धर्म के पास प्राचीन ग्रंथों का संग्रह सबसे अधिक हो तो वो केवल जैनियों के पास है। ये जैन धर्म की गौरवपूर्ण बात है। 2001 में जब महावीर स्वामी भगवान के 2500 निर्वाण वर्ष की उत्सव मनाने की बात थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे बड़ा प्रधानमंत्री। तो उन्होंने पूछा था हम लोगों को कि क्या करना चाहिए। तब हमने ये कहा था उनको कि भाई आप हमारे देश के स्थापत्य पर बहुत कुछ काम हुआ है, अन्य बातों पर बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स पर कोई काम नहीं हुआ है, तो मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए। उनको ये बात तुरंत अच्छी लग गई थी और उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए अलग फंड दूंगा, दिया भी, और हम लोगों ने कुछ काम किया। ये एनएमएम के पूर्व काल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये उन्होंने देखा कि इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये हमारी ज्ञान की धरोहर है, उसको रखना चाहिए, तब उसके बाद एनएमएम की 2003 में उसकी स्थापना हुई और उसके बाद बहुत सारा काम हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारा काम करने योग्य है और उस काम में हम आगे बढ़ सके, इसलिए विगत 20 साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे थे। हमारे प्रोफेसर धर्मचंद जी इस बात के साक्षी है कि हम 20 साल से गवर्नमेंट को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाषा बचेगी तो ग्रंथ बचेंगे, भाषा बचेगी तो धर्म बचेगा, भाषा बचेगी तो संस्कार और संस्कृति बचेगी। जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में है और प्राकृत भाषा के बिना भारत की आत्मा को हम नहीं जान सकते। केवल संस्कृत से हम भारत की आत्मा को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। इसलिए प्राकृत और पाली दोनों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले। करीब हमने 20 साल कड़ी मेहनत की है और हर एक सरकार को ये समझाने की कोशिश की कि भाई आप प्राकृत को क्यों शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे रहे। कुछ ऐसा सुयोग हुआ कि ऊपर से नीचे तक के जो लोग थे, अधिकारी लोग और नीति निर्णायक करने वाले लोग, वो परिचित थे और उन्होंने हमारी ये बात मानी। और 3 अक्टूबर 2024 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दी।
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 45 लाख की बात करूंगा मैं। 45 लाख जैनों में से किसको पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज से क्या लाभ मिलेगा? कई लोग मुझे पूछते हैं कि जीतू भाई ये क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, उससे क्या फायदा होगा? बहुत सारे लाभ है। और मैं लाभों की बात छोड़ दूं तो भी, मतलब हमें हमारा धर्म सुरक्षित रखना है, हमारे धर्म को हमें सही अर्थ में समझना है, तो प्राकृत भाषा सीखनी चाहिए। हम पूरे आवश्यक सूत्र रट लेते हैं। मतलब आज श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन में तो और स्थानकवासी में आवश्यक सूत्र के पूरे आयुष्य ये आवश्यक सूत्र रटने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आवश्यक सूत्र के अर्थ जानने वाले बहुत कम हैं। तो हम केवल तोते की तरह ही आवश्यक क्रियाएं करते जा रहे हैं। आज एक संयम भाई ने यहाँ एक बात कही थी कि द्रव्य से नहीं, संयम थे नहीं, हाँ संयम नहीं, आप ही ने कहा था ना कि द्रव्य से मतलब केवल नमस्कार किए बिना क्या लाभ होगा। मैं उसमें थोड़ा करेक्शन करना ऋषभ नहीं, संयम नहीं कहा था। मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन ये करना चाहता हूँ कि धर्म की रक्षा द्रव्य से होती है, द्रव्य क्रियाओं से, और द्रव्य क्रिया वाले भाव क्रिया में आते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमारे माता पिता हमें मंदिर ले जाते थे, तब हम नौकार या भगवान को नमस्कार करते थे, तब भगवान कौन है वो पता नहीं था हमें। लेकिन कोई ऐसा संयोग बना कि हमारा वो दर्शन भाव दर्शन में आज परिवर्तित होने की कगार पर आकर खड़ा है। तो द्रव्य क्रिया से ही धर्म की ही नहीं बोलेंगे तब भी ये कह सकते हैं कि अधिकतर द्रव्य क्रिया से भाव क्रिया निर्मित होती है। तो द्रव्य क्रिया सर्वथा गलत है ऐसा नहीं मानना चाहिए। खैर ये अलग बात पर चढ़ गए हम। तो प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है तो उसका लाभ लेना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूँ, जो ये सेमिनार के बात मैं करता हूँ, तो उस वक्त मेरे अनुभव की बात मैं करता हूँ। हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें 3 बातें आती है कि कुछ लोग अर्थार्थी होते हैं, कुछ ज्ञानार्थी होते हैं, इस प्रकार के जिज्ञासुओं के प्रकार बताए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज कुछ विद्यार्थी केवल डिग्री अर्थी होते हैं, उनको केवल डिग्री चाहिए, डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब कि वो पीएचडी बनना चाहते हैं क्योंकि उनके आगे डॉक्टर लग जाता है, या डॉक्टर लगने से वो अपने आप को परिवार में और समाज में बहुत ऊंचा मानने लगते हैं। ये जो एक मानसिकता है उसको हमें करेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे खुद के अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे एक विद्यार्थी ने पीएचडी की। उसके बाद मैंने 1 साल बाद पूछा कि भाई आपने ये डिग्री मिल जाने के बाद कितने ग्रंथों का अध्ययन किया या कितनी किताबें पढ़ी? तो कहा नहीं, उसके बाद एक भी किताब मैंने पढ़ी नहीं है। आज की स्थिति अधिकतर ये है कि डिग्री मिल जाने के बाद पठन पाठन कम हो जाता है। मैं एक और दृष्टांत देना चाहता हूँ। गुरुचरण दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुरुचरण दास वो मैनेजमेंट गुरु में सबसे अग्रिम पंक्ति के मैनेजमेंट गुरु हैं। उनको कई बार उनके परिवार वाले पूछते थे कि भाई आप क्या करोगे जीवन में, तो वो कहा करते थे कि मैं जब 50 साल का होऊंगा तब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। बहुत अच्छी खासी उसकी कमाई थी। बेंगलोर आईआईएम में वो प्रोफेसर थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे। तो उन लोगों उनकी ये बात सुनकर लोग उनकी मजाक करते थे कि 50 साल तो बहुत छोटी उम्र है और उस समय आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद महाभारत पढ़ूंगा। तो लोग और मजाक करते थे कि भाई महाभारत पढ़ने के लिए क्या तुम रिटायर्ड हो जाओगे? तो कहा हाँ मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। 50 साल जब पूरा हुआ उनके आयु के, तो उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। लाइब्रेरी में गए, उन्होंने महाभारत पढ़ना शुरू किया। फिर उनको रिसर्च करनी थी महाभारत पर, तो उनको किताबें नहीं मिली।
तो उन्होंने ये सोचा कि भारत में मुझे पूरी किताबें नहीं मिल रही हैं, तो मैं कहीं विदेश में जा कर के लाइब्रेरी अटेंड करूं। तो उन्होंने शिकागो में गए, शिकागो जा कर के शिकागो की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने लगे, और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, इट इज़ डिफिकल्ट टू बीइंग गुड, जो महाभारत पर आधारित है, और वो काफ़ी हिट पुस्तक भी हुई। उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है उन्होंने ये सारी बातें। तो हम लोग लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, नए ग्रंथों को देखते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ नए विद्वान हैं और पुराने विद्वान हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तब कहा करते थे कि जो लेक्चरर होते हैं वो पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है, जो रीडर होते हैं वो केवल पढ़ाते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं वो पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है। और आज सब जितने भी डिग्रीधारी है वो सब प्रोफेसर बन जाते हैं पहले ही दिन। तो उसके कारण पढ़ना और पढ़ाना बंद हो जाता है। ये बहुत कटु सत्य मैं बोल रहा हूँ। और जब तक ये पढ़ना और पढ़ाना नहीं रहेगा, पढ़ाना मुश्किल है तो लिखना, लिखना और पढ़ना जब तक चालू रहेगा तब तक विद्या जीवंत रहेगी। नहीं तो हमारे संस्कृत भाषा में कहा गया है कि अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या निरर्थक हो जाती है। तो जैनियों में सबसे बड़ी जो कमी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अधिकतर जैन नोटों की गड्डियां गिनते हैं, मतलब करेंसी गिनते हैं, लेकिन किताबों के पन्ने कभी भी पलटते नहीं हैं। हमें ये एक निर्णय करना पड़ेगा कि प्रत्येक जैन प्रतिदिन कम से कम 10 पेज का अध्ययन करे, 10 पेज वो पढ़ें, तो धीरे धीरे जा कर के उसमें ज्ञान रुचि बढ़ेगी। मैं मेरे जीवन के अनुभव की बात करूं, एक विद्यार्थी मेरे पास अभी पीएचडी कर रहा है, तो जब आया तो मैंने कहा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, तो कहा कि भाई पढ़ किताब लेता हूँ तभी मुझे नींद आने लगती है। तो कहा जाओ घर में सो जाओ, किताब लेने की भी जरूरत नहीं है। तो कहा नहीं, पीएचडी तो करना ही है। तो मैं कहा कि पढ़ना शुरू करो, 10 पन्ने का नियम लो। पहले दिन किताब ले गया, पढ़ कर आया कि भाई इतने हर पेज में 15 20 25 जगह पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा करके ले आया कि इतनी इतना। मैं कहा कि पूरी किताब पढ़ो फिर प्रश्न पूछने आना। पूरी किताब पढ़ी। आज मतलब एक साल में उन्होंने 25 किताब, उस बच्चे ने 25 किताबें पढ़ ली, और वो कहता है कि आज मेरे मन के कई प्रश्नों का समाधान अपने आप हो गया है। तो पढ़ने का ये लाभ है। तो जैनों को केवल धनवान नहीं बनना है, विद्यावान भी बनना है। जब विद्यावान बनेंगे तो उनमें दया भी आ जाएगी, करुणा भी आ जाएगी, अहिंसा भी आ जाएगा, अपरिग्रह भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो विद्या के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो ये जो यहाँ मिथ्यात्व की बात करें या सम्यक्त्व की बात करें, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा एक मानना है कि हमें ज्ञान की रुचि पैदा हो, उसके लिए प्रत्येक जैन के लिए ये बात करनी पड़ेगी कि पढ़ाई करने का आदत डालें। धर्म की बात जब हम यहाँ करते हैं, धर्म और दर्शन की, दर्शन और धर्म के, भारत में जितने भी धर्म हैं उन्होंने ये भेद नहीं किया कि धर्म और दर्शन अलग अलग है। अधिकतर ये माना गया है कि धर्म में दर्शन समाविष्ट हो जाता है। धर्म और दर्शन एक ही बात है। जहाँ आचार वही आचार है जहाँ चिंतन भी हो। फिर जब फिलोसॉफी शब्द आता है यहाँ प्रसिद्ध होने लगता है, तब धर्म और दर्शन में अंतर पड़ने लगता है। लेकिन जो यहाँ साइंस, फिलोसॉफी और दर्शन की बात करते हुए कल भंडारी साहब ने अपने पेपर का प्रारंभ किया था, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने यहाँ कही कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि ऐसा कार्य करना बहुत दुष्कर है, और वो दुष्करता ये है कि मेरू पर्वत पर चढ़ना आसान है, लेकिन ये विद्या के काम आज जैनियों के सामने करना अत्यंत दुष्कर है। इसलिए आप थोड़ा निराश मत होइए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आगे बढ़ते रहिए।
तो हमेशा आप हंसते रहिए, हंसते रहेंगे तो काम होता रहेगा। ये कहा कि अपने देवेंद्र साहब ने कि दुखक कवो कम्मक खवो दुखक कवो कम्मक खवो समाई मरणं च बोहि लाभो संपज्जौ मह एयम तुह नाह प्रणाम करणेनम। तो हम लोगों ने यहाँ 2 दिन तक, यहाँ हमारे नाथ तो ज्ञान ही था, ज्ञान को प्रणाम किया 2 दिन तक, और उससे हमारे दुख का भी क्षय हुआ है, कर्म का भी क्षय हुआ है। 2 दिन थोड़ा बहुत तो समाधि लगी हुई है, जिनको समाधि नहीं लगी वो भी समाधि में चले गए थे। तो मतलब नींद में चले गए थे, उनकी भी समाधि लगी। पर कहने का मतलब है कि इस प्रकार के ज्ञान सत्र आप कम से कम वर्ष में 2 बार कीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार कीजिए। उससे दुखक कहो कम्मक कहो समाई मरणम चो भोई लाभो संपज्जौ महयम तोहना प्रणाम करणेनम, ये सार्थक होगा। हमने एक चिंता यहाँ व्यक्त की थी, खास करके अपने साहब ने, कि समाज बटा हुआ है, लेकिन एक सन्निष्ठ प्रयास किया जाए तो समाज एकत्रित हो सकता है। जो हमने देखा यहाँ 9 अप्रैल को, कि जब समाज ने कोई एक निश्चित गोल लेकर के काम किया, तो पूरे देश के करीब लाखों जैनों ने एकत्र होकर के नवकार मंत्र का जाप किया। उसमें एक ही हॉल में स्थानकवासी भी थे, देरावासी भी थे, दिगंबर भी थे, तेरापंथी भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी घटना उसके बाद जो घटती है, बम्बई में एक मंदिर टूट जाता है। तो मंदिर टूटा तो सभी जैनों ने एक होकर के ये कहा कि ये गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर दिगंबर का था, लीड श्वेतांबरों ने ली, और दिगंबर मुनियों ने उसकी सराहना की। ये एकत्र होने का, एक होने का लाभ है। और इस तरह से मतलब हम यदि सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। संशोधन की बात में मतलब जो यहाँ की, वो संशोधन की बात मतलब रिसर्च की, हमारा जो साहित्यिक रिसर्च है, या इस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि एक अलग प्रकार के रिसर्च की जो बात चली कि हम समाज के पास जाए, उससे इंटरव्यू ले, और उस डेटा के आधार पर हम हमारे सिद्धांतों की चर्चा करें। वो अच्छा है, लेकिन जब तक सिद्धांत का मूल हमें बोध नहीं होगा तो उसका लाभ नहीं होगा। तो हम जो भी करते हैं उसमें सिद्धांत का पूर्ण रूप से बोध हो, वो हमें देखना चाहिए। समाज के अंदर ये जो बातें हुई है कि अ, हमारे सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं। एक तो संख्या की चुनौती है कि हमारी संख्या कम हो रही है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सोचनीय बात है। लेकिन उसके लिए हम कोई मुस्लिम जैसा काम नहीं कर सकते। उन लोगों ने पिछले करीब 20 साल में अपनी स्ट्रेटेजी बदल डाली। पहले वो जहां भी जाते थे वहां दंगे करवाते थे। उनका ये स्ट्रेटेजी रही कि भाई कुछ करोगे तो कुछ तो मिलेगा, इसलिए चुप मत बैठो, दंगा करते जाओ। लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल डाली। उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि हर एक कपल 8 पुत्रों को पैदा करे, मतलब एक पुरुष 8 बच्चों को पैदा करे। और ये जो बना, तो उसके कारण आज यूरोप पूरा मतलब नाश विनाश के कगार पर खड़ा है। क्योंकि 10 साल के बाद यूरोप नहीं रहेगा, वो मुस्लिम कंट्रीज हो जाएगा, वो मुस्लिम कंट्रीज का देश बन जाएगा। तो 8 पुत्रों वाला सिद्धांत तो हम ये अपना नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कोई जैन पुरुष को कि भाई तू 4 बच्चा पैदा कर। तो ये हो जाएगा कि स्त्री स्त्री नहीं रहेगी, बच्चा पैदा करने का मशीन हो जाएगा। तो ये सारे बहुत प्रश्न है। तो उसका समाधान तो जो लोग मतलब आगे हैं समाज में उनको करना है, और जो आचार्य लोग हैं उनको करना है। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरा अनुभव भी नहीं है।
फिर भी हमारा जो सबसे बड़ा काम है वो ये होना चाहिए, मैं कर दूंगा पूरा वो शाकाहार, वेगनिज्म की बात बहुत चली है विश्व में, उसको बहुत ही प्रसिद्धि मिल रही है। और आपने देखा होगा जितने भी यहाँ जुड़े थे विदेशी लोग, विदेशी भारतीय लोग, वो वेगनिज्म की बात कर रहे हैं। गैरी नाम का एक विद्वान है जो यू पेन में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो मेरे पास आए थे जब मैं अमेरिका में यात्रा कर रहा था तब। तो उन्होंने कहा कि जीतू भाई मैं आपसे ज़्यादा बड़ा जैन हूँ। मैंने कहा कैसे? तो कहा कि देखो मैं खादी के कपड़े पहनता हूँ, मैं चमड़ा नहीं पहनता हूँ, मेरा चप्पल भी चमड़े का नहीं है, मेरा रुमाल भी खादी का है, और मैं अपने पास हैंड वॉश करने के लिए अहिंसक साबु भी अपने जेब में रखकर चलता हूँ, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो हाथ मेरा साफ करता हूँ तो मेरे साबुन से करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई लिकर की क्या बात है, आप बताओ तो विगनिज्म में लिकर का क्या स्थान है? तो कहा लिकर तो हम पी सकते हैं, मतलब शराब तो पी सकते हैं, शराब पीना मना नहीं है। उससे भी गंभीर जो बात आने वाली है वो ये है कि अमेरिका ने ये खोज निकाला है, अम, अम, मीट मीट का विकल्प एक निकाला है उनको। उन्होंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, उसको कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आर्टिफिशियल मीट बन चुका है। आर्टिफिशियल मीट कहते हैं, जो आर्टिफिशियल मीट है वो पशु एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। तो एनिमल प्रोडक्ट नहीं होने के कारण, आप जा रहे हैं? ओके। मैं कहा कि आप कुछ ओके हम मिसिंग करेंगे आपको तो आर्टिफिशियल मीट वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं होने के कारण कल ये जो वीगन है वो मीट खाएंगे तो वो मीट परमिट होगा कि नहीं, वो शाकाहारी मीट माना जाएगा कि नहीं, ये सारे बहुत प्रश्न हमारे सामने पड़े हैं। तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। जीव दया की बात है, जैन धर्म के सिद्धांतों की बात है, उसको हमें देखना पड़ेगा। फिर भी मैं एक बात के लिए बार बार कहूँगा कि हमारे शास्त्रों का अध्ययन बढ़ना चाहिए, शास्त्रों मूल रूप में पढ़ना चाहिए, और उसके अनुवाद बाद में आता है, अनुवाद करने चाहिए, लेकिन जो विद्वान हैं उन विद्वानों को मूल शास्त्र पढ़ करके उसके अर्थ का चिंतन करते हुए उसका तत्व निकाल करके समाज को देना चाहिए। लेकिन विद्वान होने का मतलब है मूल शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते रहना चाहिए, यही मैं मानता हूँ। और मैं पुनः भंडारी साहब को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को भी मैं नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके अध्ययन करके यहाँ पेपर प्रस्तुत किए। उन सभी को भी मैं नमन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। और आपने कुछ गंभीर और कड़े शब्दों में विद्यार्थियों को भी संबोधित किया। उसको आप उसी तरह से लीजिए कि ये उनकी भावना है कि आप और निखर करके आएँ। मैं अब आगे, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो जैसा हमने कहा था कि हम विद्यार्थियों को और शोधकर्ताओं को, यंग लोगों को पुरस्कृत करना चाहते हैं। मूल भावना ये है कि वो और अधिक काम करें। और कई अच्छे उसके अंदर पत्र थे। ऐसा मैं नहीं कहता कि हम 3 को पुरस्कार दे रहे हैं तो 3 ही अच्छे थे, इस भावना के साथ में ना लें। लेकिन ये है कि और भी कई अच्छे थे और जिनको कि हम शामिल नहीं कर पाए इस बार। अगली बार हम पुरस्कार की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, वो हमारा सोचने का विषय है। तो मैं भंडारी साहब से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और विद्यार्थियों को और ये रिसर्च स्कॉलर को ये प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि प्रदान करें। इधर ही तो सबसे पहला ये नंबर है, ये संयम जैन, वो आगे आए और उनको बोल भी देना है नाम लिखने के लिए।
और दूसरे नंबर पर हैं यशराज एंड तनिष्क। हाँ। और तीसरे नंबर पर हैं अनन्या। अनन्या नहीं है क्या? चलिए ये रख लीजिए आप। तो ये है कि इसको तीन ही नहीं समझिए कि नहीं, इनको क्या कहना है, ये एक मिनट इधर मिल के जाओ, इनसे मिल के जाओ। हाँ हाँ, आप उनसे मिल लिए, आप भी एक बार मिल लीजिए इनसे, हैं? हाँ। तो अनन्या है क्या ज्योति बाबू? नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा वो अभी अनन्या नहीं है साहब। तो अब आप ये देख लीजिए, समय अगर है तो हम पैनल डिस्कशन रखना चाहेंगे। ये तृप्ति जी, डॉक्टर तृप्ति जैन हैं। अच्छा। ऐसा करते हैं, चलिए वैलिडिटी सेक्शन जो है, सेशन है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें ऑडियंस में किसी को कोई प्रश्न है तो हमारे यहाँ पर सभी सीनियर लोग हैं, वो आंसर भी दे सकते हैं। तो हैं? हाँ हाँ, क्या बोलना है? प्रश्न और रिएक्शन टू दी मीटिंग दोनों चाहिए। 5-6 कमेंट। हेलो, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ पर बहुत सारे युवा विद्वानों को देखकर मुझे बहुत प्रोत्साहन तो प्राप्त हुआ ही, किंतु मेरा जो अनुभव है संस्कृत प्राकृत आदि का अध्ययन करते समय, ये एक भाग है कि यूनिवर्सिटी तक आने का प्रोत्साहन देने में हम सभी ने बहुत परिश्रम किया है। कई विद्यार्थी कोर्स में जुड़ते हैं किंतु कंटिन्यू नहीं करते हैं। कुछ कुछ कारण है कि उनको अध्यापन न पसंद आया हो, यह तो सबसे जघन्य कारण हो सकता है। किंतु सपोर्ट ना मिलना इत्यादि कई कारण है, जिनके कारण जैसे एडमिशन होता है तब 50 विद्यार्थी होते हैं, पर कोर्स खत्म होने तक 20 ही विद्यार्थी हो जाते हैं, कई स्थानों पर 10 विद्यार्थी हो जाते हैं। तो इसके विषय में गहन चिंतन की आवश्यकता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को प्रारंभिक काल में उसे उत्साह होगा कि मैं करूंगा, किंतु समय के साथ यदि वह न्यून हो गया तो वह उस विषय को ही आज छोड़ देगा। हमारे जैसों की मेंटालिटी ऐसी है कि यदि हमें शुरुआत में पूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ तो 6-8 महीनों के बाद हम विषय अंतर में ही चले जाएंगे, क्योंकि वहां हमें ऑलरेडी जो चाहिए वह प्राप्त हो ही रहा है। तो इस विषय पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। ये ऑडियंस में से सेमिनार और ये हमारा ये प्रयास रहा, कैसा रहा, हम जानना चाहेंगे, यंग लोगों से भी और सीनियर लोगों से भी। तो आप ये सवाल चंद जी, आपको मैं यहीं से शुरू करता हूँ, आगे की पंक्ति से। पीछे से जो भी हैं वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं। यंग लोगों को जोड़ना बहुत ही अच्छा लगा। आज सुबह से हम लोग यहीं बैठे रहे, कहीं बाहर ही नहीं गए। इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगा रहेगा ऑडियंस को। इट्स गुड। और इनके विचार भी आए। एक भाई का विचार भी, जिनको आपने अभी सेकंड प्राइज दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ अलग से भी सोचना चाहिए, तो कुछ नई चेतनाएं भी मिलती है, नई सोच भी मिलती है। आई थिंक इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर एवर। और जैसे सजेस्ट किया कि साल में 2 होना चाहिए, तो 2 में एक दिन पूरा होना चाहिए इन लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल Not सही है part of साहब, it. बहुत अच्छी बात है साहब। और ये हमारा पहला प्रयास ही था ये स्टूडेंट्स को जोड़ने का। हाँ और हाँ। पहले स्टूडेंट्स का होना चाहिए, बाद में नेक्स्ट डे होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स भी क्या अच्छा ही है वो भी आप उनको बता सकें, और क्या कहाँ उन्होंने गलती की है वो भी बता सकें, कौन से एरिया में उनको देखना चाहिए वो भी अपने आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सर। तो उससे आई थिंक सो दैट विल बी सर्विंग मोर पर्पस देन दिस। थैंक यू। थैंक यू। ये हाँ साहब। मैं कैलाश मधुकर
चेन्नई से हूँ। ये जो बात जीतू भाई ने कही थी कि कम से कम ये प्रयास जो किया जा रहा है कि सेमिनार जो है, कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष रेगुलर रूप में होनी चाहिए। और दक्षिण में हमारे रिसर्च फाउंडेशन जनरल जी, उसका मैं फिलहाल अध्यक्ष हूँ। तो दक्षिण में भी हम एक सेमिनार 6-8 महीने के अंदर चेन्नई के अंदर करवा देंगे। तो उसके उसके बारे में वेरी गुड सर, प्रियदर्शना जी हैं। थैंक यू। हम एडवांस में थैंक यू आपको कहेंगे, धन्यवाद, बहुत वो- अच्छी बात है। और युवकों को जोड़ने का प्रयास पूर्ण रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम युवकों को नहीं जोड़ेंगे, अभी भी हमारे जो जितने भी विद्वान यहाँ पर आए हैं मोस्टली, तो तृप्ति जी को छोड़ के, तो यंग लोगों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो जितने युवक जुड़ेंगे उतना भंडारी जैसे कल जो बात कर रहे थे, तो उनका उत्साहवर्धन होगा अगर युवक पूरे रूप से जुड़ेंगे। थैंक यू सर। उधर ये एडवोकेट अनूप चंद जी साहब को जरा उधर से ले लेते हैं, और उधर साथ में उनके बैठे हुए हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, चालू है साहब, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। शायद इस तरह की सेमिनार में पहली या दूसरी बार आना हुआ है। ये लकीर से हटकर थी, और युवा लोगों ने जिस तरह की यहाँ प्रस्तुति की, हम चाहते हैं कि ऐसे युवाओं को बहुत प्रोत्साहन दें। उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, और उनका ये जो वीडियोग्राफी करके उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, और जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया कि क्या है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस सब के लिए हमें उनको बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम लोग तो आउट ऑफ डेट हो गए हैं, तो आउट ऑफ डेट को अपडेट करने का काम यही लोग करेंगे, और इसलिए हमें इन्हें निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत आभारी है जाश के और उन सभी संस्थाओं के जिन्होंने इन सबको कोलैबोरेट करके स्पॉन्सर कराया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा साहब हैं, पदम चंद जी जरा बोलिए। हाँ, शॉर्ट में सर। सर, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और खास तौर से युवा पीढ़ी के जो लोग जुड़े हैं, तो ऐसा हृदय में प्रसन्नता हुई कि हम कहते हैं कि जैन धर्म हमारा कहीं गिर रहा, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैन धर्म उभर करके हमारे सामने आ रहा है, और इतना जोश, इतना होश और इतनी उनकी कैपेबिलिटी जो है वो आज देखने को मिली। वास्तव में मैं उनकी गदगद होकर के तारीफ करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में हो, जैसा कि प्रस्ताव आया, हर साल 2 यूनिवर्सिटी में ऐसे कार्यक्रम हो, यही मेरा निवेदन है। बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ आना, आपसे मिलना। सभी धन्यवाद। मेहता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। मेरा कहना है कि हम एक प्रयोग करना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक साधनों से हेल्थ कैसे ठीक रह सके। उसके लिए एक प्राकृतिक तेल, मतलब आयुर्वेदिक तेल से खाली नाभि में लगाने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, और मोटापा कम हो जाता है। अपनी इसके उंगलियों के ऊपर लगाने से कमजोरी कम हो जाती है। इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो भी अगर जुड़ना चाहें तो वो अपना सहयोग देके जुड़ सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। एक कछारा साहब से हम निवेदन करेंगे। इधर आगे आगे जरा कछारा साहब को ले लेते हैं पहले। हाँ, जेएस का जो मूल ऑब्जेक्टिव था, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का इंटीग्रेशन, उसको मैं यहाँ साक्षात रूप में प्रायोगिक रूप लेते हुए देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जीतू भाई ने भी अभी प्रश्न किया था कि कौन किसका एग्जामिनेशन करे, तो ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों ही पक्ष मेरे ख्याल से उसके इम्पोर्टेंट है। एक एकांतवाद हम नहीं मानते, हम लोग अनेकांतवाद में विश्वास करते हैं, इसलिए उसके दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण है। और उस दिशा में मेरे ख्याल से हमारे युवा वर्ग आगे आ रहे हैं, और मुझे बड़ी आशा है भविष्य में कि ये जो जेएस का जो प्रयास है वो बहुत सफल होगा। थैंक यू सर। ये सुषमा जी इधर आगे ही ले लीजिए, पहले पूरी पंक्ति पूरी कर लें, सुषमा जी और धर्मचंद जी। हाँ, इस सेमिनार ने बहुत सारे नए आयाम प्रस्तुत किए हैं,
महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। तो इस प्रकार सभी पीढ़ियां इससे उपकृत हुई हैं। मैं इसके आयोजकों को, भंडारी साहब को, जीतू भाई को और सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, हमें जो ये मौका मिला है इसको धन्य धन्य समझना चाहिए। हम किसी को धन्यवाद दें, उसका अर्थ होना चाहिए कि हम धन्य हुए तो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धर्मचंद जी साहब। जेएस की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जिसमें किसी यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुई, और उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि फर्स्ट डे 3 टेक्निकल सेशन रखे गए, 3 आरटीएम रखे गए, जिसमें दर्शन पर, इतिहास पर और समाज पर चिंतन किया गया। और फिर दूसरे दिन ये संगोष्ठी में जो विशिष्ट रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए, और उसमें सारे रिसर्च पेपर नई जनरेशन के थे। ओल्ड जनरेशन का कोई रिसर्च पेपर यहाँ प्रेजेंट करने का भाव नहीं रखा गया। उसमें एक आध जुड़ गए तो अलग बात है। तो एक नए रूप में ये सेमिनार या 2 दिन का संगोष्ठी, उसके साथ में एजीएम तो था ही। तो इसके लिए जो डिजाइन जिन्होंने भी किया है, योगदान रहा है भंडारी साहब का, अनिल जी का, पोखरना साहब का, उन सबका हार्दिक धन्यवाद। और यहाँ व्यवस्थाएं भी बड़ी सुचारू, एक ही भवन में सारी व्यवस्थाएं हो गई, जहाँ ठहरने को भी मिल गया, और नवकार भवन दूसरा ज्यादा दूर नहीं, और ये यहीं सेमिनार का स्थल भी, तो आने जाने का समय भी बचा। तुरंत यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुए। तो बहुत सुंदर व्यवस्था। और ये आगे जो प्रपोजल आ गया दुगड़ साहब का, इस पर हमको विचार करना चाहिए, और आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी आपको सूटेबल हो तो एक गोष्ठी वहाँ हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और साहब इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ज्योति बाबू जी को, जिनके कारण ये व्यवस्था हमको उपलब्ध हो पाई। उनके लिए एक जोरदार ताली तो बस होनी चाहिए। सुमत जी, ज्योति बाबू जी, इनकी वजह से यहाँ पर वो तो बाद में अभी आएगा ही, अभी लेने वाले हैं बात। यंग लोगों में जो भी कहना चाहें एक एक करके हाथ उठा दें और कहते जाएं। हाँ, एक पहले इनको ले लेते, नाम बोलिए। और हाँ, मेरा नाम तनिष जैन है। तो मैं जो है जैस और एमएलएसयू दोनों को बहुत ही बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा सेशन उन्होंने कंडक्ट किया। अभी उन्होंने कहा कि जो है हम लोग अब आउटडेटेड हो गए हैं, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप लोग का जो नॉलेज है और हम लोग की जो एनर्जी है, उस गैप को हम इस सेमिनार के द्वारा फिल कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये सेमिनार होते रहने चाहिए, तो वो गैप फिल होते चले जाएंगे। और पीछे उनको दे दीजिए, वो हाथ उठा रही मैं भी बस यही बोलना चाह रहा था कि हम लोग वृद्ध हैं, आप लोग युवा हैं। आप लोग की एनर्जी देख करके हम लोग भी चकित है कि आप सब रिटायर्ड होकर के भी इतने सब बैठ करके सुन रहे हैं। तो हम लोग तो टिक करके बैठ जाते हैं और एनर्जी नहीं रहती। आप लोग की एनर्जी देख करके हम लोग को बहुत उत्साहवर्धन हुआ। सभी को जय जिनेंद्र। वो पीछे उनको दीजिए, वो आप। हाँ, नमो जिनानम जिये बयानम। कल जो जिनेश्वर की भक्ति से संबंधित एक लाइन बोली थी, समय न होने से उसको थोड़ा सा एक लाइन में, कि संपूर्ण जो ये है सभी को कोटि प्रणाम। और जिनेश्वर की भक्ति है, वो भक्ति रूपी मोती जो है, वो सीप किस रूप में काम करेगा कि जिनेश्वर की भक्ति तो मोती है, और जितने भी शब्द और आख्यान हुए हैं वो अनेकांतवाद स्याद्वाद उस सीप का काम करेंगे, और स्वाति नक्षत्र की बूंद है वो जिनेश्वर की वाणी काम करेगी। एक तो ये, और दूसरा ये कि जाति स्मरण ज्ञान आज भी विद्यमान है, और यहाँ पर न जाने कितने कितने भव्य जीव हैं, और खुद भी एक अनुभूति के साथ है। तो जाति स्मरण ज्ञान जो है वो आज भी मौजूद है, आज भी पुनर्जन्म है, और ऐसी ऐसी बातें हैं कि शायद जैन शासन की ऐसी सर्वोत्तम प्रभावना संपूर्ण विश्व में हो कि पूरा शासन की मतलब जय जयकार हो। बस थोड़ा सा समय और एक पुरुषार्थ की जरूरत है। तो सभी के आशीर्वाद के साथ। थैंक यू। पवन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नाम बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता रंजन है। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली से आई हूँ। मैं सहायक अधीक्षण पद के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मेरा ये प्रथम अवसर है जेएसएस से जुड़ने का। अंकन, मंचन, संयोजन और नवीन अनुसंधानों से प्रेषित यह मंच प्रेरणा देता है आपके तप को, आपके ज्ञान को, आपके संयम को, आपके आत्मचिंतन को। चेतना के सफर से शुरू होकर कृत्रिम अनुसंधान पर आधारित आज 2 दिवसीय जो शोध का विषय है वो समग्र ज्ञान देता है, आपके सम्यक चरित्र का निर्माण करता है, आपके भावी भविष्य की परिकल्पना करता है, युवा ऊर्जा को समर्पित करता है, और आप सभी गुरुजनों के आशीर्वाद और अनुभवों को समन्वित करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अपने हाथ रेस करें जिसको भी कहना हो।
अब इधर यहाँ पर ये अपना ये टीचिंग स्टाफ भी है, उनको भी हम लेंगे। हाँ हाँ बोलने के पहले ही बोलते हैं एकदम शॉर्ट में। टीचर की भूमिका हमेशा रहती है। नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में ही बोलूंगी। सिर्फ इतना 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि मैंने पहली बार अटेंड किया है और पहली बार मैं JAS को जान रही हूँ। और उसके साथ का जो ये कार्यक्रम है ये सबसे अच्छा इसलिए है, बाकी सारी व्यवस्था के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और कल जो बच्चे यहाँ बैठे थे वो निश्चिंत करते हैं हमें कि हमारे धर्म का, हमारे शास्त्रों का फ्यूचर बहुत सुरक्षित है। किस चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। हाँ, इधर यहाँ टीचिंग स्टाफ अपना बैठा हुआ है, बडाला जी हैं, दूसरे हैं। हाँ मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं इतनी आज प्रसन्न हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्राइज हमारे ही स्कॉलरों को मिला है, हमारे ही डिपार्टमेंट वालों को। संयम भैया को और यश को बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा सेमिनार रहा। हमको जब से पता चला यूनिवर्सिटी में कि हमारे 25 और 26 को सेमिनार है, तब से हम उत्साहित हैं कि हम और ये सेमिनार इतना अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू। ज्योति बाबू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्योति बाबू जी को ले लीजिए जरा इधर। हाँ हाँ, बस हो गया ये लास्ट, बस लास्ट। सर, आपने हमारे शोधार्थियों को जो पुरस्कृत किया है, वास्तव में ज्ञान की वैल्यू ज्ञानवान ही समझता है। ज्ञानी ही ज्ञान के पुरुषार्थ को, ज्ञान की वैल्यू को समझने वाला होता है। आप लोगों ने समझा और उनको प्रोत्साहित किया और आशा करते हैं कि जो आपने हमें अभी जो भी अवसर दिया है, आगे और बड़ा अवसर मिले। और आगे शायद 14 तारीख को ही हमारे जो प्राकृत भवन यहाँ परिसर में बना है, आप लोगों से निवेदन है कि वहाँ पर अवलोकन करें। इसके बाद में समापन सत्र के बाद वहाँ पधारें और अभी अगले महीने हम उसका लोकार्पण करना चाह रहे हैं। और ये सब विद्यार्थियों का, हमारे इस विभाग का ये योगदान है। अभी वर्तमान में लगभग सर शताधिक विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी तो हमारे यहाँ UG में है, प्राकृत में, जयनागम में, और 30 विद्यार्थी MA में अध्ययन कर रहे हैं और 15 विद्यार्थी रिसर्च स्कॉलर हैं। तो हमारा ये विभाग समृद्ध है और आप लोगों ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद सर। ये मैडम मेहता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, ये पीछे बैठी हैं तीसरी लाइन में। हाँ हाँ हाँ। I congratulate JAS for this unique opportunity to the youngsters. Thinking on those issues, I have a suggestion to JAS and also other organizations that in the forthcoming seminar or conference, we should have a network of all the universities which have Jain department and invite all the PhD students on the same platform to contribute their research work. Thank you. थैंक यू। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, ये कहिए। तो ये हमारे सबसे यंग जो हैं जसवंत भाई मोदी ये शाह, अब ये कुछ कहना चाहेंगे। 1 मिनट उनको दीजिए साहब। ये सबसे यंग है, 90 years old। थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव, सबको प्रणाम। मैं यही बोलना चाहता था, अगर लिसनर नहीं है तो स्पीकर क्या करेगा। तो मैं लिसनर के रोल में बैठा हूँ। और यही तो मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में 50 साल पहले पढ़ा था, आर्ट ऑफ लिसनिंग। ऑरेटर तो होते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिसनिंग होना, जो जज बनेगा वो आउट ऑफ लिसनिंग होगा, वकील बनेगा वो आउट ऑफ स्पीकिंग बोलने का। इस तरह से होता है। तो क्या इम्पार्शियल हियरिंग होना चाहिए, इस तरह से देखना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। कैन वी हैव अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल? दैट वे। थैंक यू साहब, थैंक। देखिए, ये है जीवन का निचोड़। और एक किसी को मिनट, कोई जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ, आप ये तृप्ति जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए तृप्ति जी खुद। आफ्टर में अच्छा, हाँ।
जी जैसे सर ने कहा, एज अ लिसनर मैं भी अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस कर रही हूँ। बहुत पुण्यवानी का उदय होगा शायद जो मैं यहाँ पर हूँ। और मैं इसके लिए जेएएस और एमएलएसयू दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतने रेलिवेंट विषय पर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। और इस सेमिनार के अंत में ये तो हम सबको पता लग ही चुका है कि जैन फिलॉसफी के समक्ष मॉडर्न, साइंटिफिक और सोशल तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। पर जो मूल अवधारणा है, जो मूल फिलॉसफी है जैनिज्म की, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी आज से हजारों साल पहले थी। चाहे वो अहिंसा हो, जिसको हम श्रावक के रूप में मिनिमलाइजेशन कह सकते हैं कि हम मिनिमाइज करें अहिंसा को, चाहे हम डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट, अनेकांतवाद जो सब समस्याओं के निवारण में हमको हेल्प कर सकता है, एंड अपरिग्रह। जापान में बहुत कुछ फॉलो हो रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। तो मिनिमलिज्म को हम जीवन में लाएं, वो भी आज की डेट में उतना ही रेलिवेंट है। और ये जो भी सोशल और साइंटिफिक चैलेंजेस हैं, इनको हम एज अ थ्रेट ना समझकर एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करके अपनी ही फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस को री इंटरप्रेट करके आगे हम इसको रखें तो हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तृप्ति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी खुद? जी सर, बोलिए। एक मिनट ही बस। हाँ। जैन धर्म में, दर्शन में 3 बातें हैं मुख्य। व्यवहार सूत्र है, 6 सूत्र में व्यवहार सूत्र आता है। उसमें 2 बातें हैं, पिच्छा और वाचा, पूछना और वाचना लेना। तो हमारी जनरेशन में ये एक प्रॉब्लम है, पूछ भी लेंगे लेकिन उसकी वाचना ज्यादा देर तक सुन नहीं सकते। तो हम सबको यहाँ पे काम करने की जरूरत है कि क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली आने चाहिए। जवाब देने के लिए हमारे पास सीनियर हैं, जैसे जीतू भाई जी ने कहा था कि धर्मचंद जी सर ने कुछ आचार्यों के नाम लिए, वो उनको याद कर रहे हैं, हम इनको याद कर लेंगे, लेकिन हमको याद करने में बाद में क्वेश्चन के आंसर देने वाला कौन रहेगा? तो आने वाली जनरेशन को आंसर देने वाले नहीं रहेंगे। तो आंसर हमको इनसे लेने हैं। और थर्ड, गुरु दक्षिणा, जो शायद सभी को देनी है, क्योंकि जितने यंगस्टर हैं आप सब ने भी कुछ ना कुछ सीखा है और सभी ने, आप लोगों ने इनसे सीखते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो भी होगी, जितने भी हमारे गुरु हैं, आप सब एक एक स्टूडेंट्स को आप ढूंढ के लाइए जो आ चुके हैं उनको छोड़कर। और जितने भी यहाँ पर यंगस्टर बैठे हैं, फर्स्ट टाइम जेएस में आए, दो स्टूडेंट्स आपको यंग जनरेशन्स के लेकर आने हैं। सिर्फ लेकर नहीं आने, उनको पूरा तैयार करके लेकर आना है। ये गुरु दक्षिणा होगी गुरुओं के लिए। एग्री है सब? थैंक यू सर। अभी डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी प्रस्तुत कर लूं? हाँ 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 हाँ। ऊपर का नीचे कर देते हैं, वो टाइम बहुत शॉर्ट है। जैसे हम समापन की ओर जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे नहीं कहना चाहिए समापन की ओर, मुझे कहना चाहिए इट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स ए न्यू बिगिनिंग। आई थिंक दिस वी शुड टेक एज ए न्यू बिगिनिंग, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, इंटरेक्शन, एंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब सजेशन आपने दिए और जो भी हमारे पास हैं हम उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। नाउ टाइम हैज कम टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटफुलनेस टू persons who have really come forward and helped us organize this. Host institution, ज्योति बाबू यूनिवर्सिटी और सब विद्वान जो यहाँ हैं, ये सब के सहयोग से हुआ है। और जैन एकेडमी इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज वेरी डेमोक्रेटिक। तो ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है और बाकी सब उसमें आ रहे हैं, ये सब मिलके हमने इसका आयोजन किया है। मुझे इस वक्त एक बचपन की स्मृति याद आती है, वहीं से शुरू करूंगा। मैं एक संत के पास गया था जब छोटा था, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल बात बताई कि आप अच्छा काम करना और बुरा काम मत करना। तो इन माय इनोसेंस आई आस्क हिम कि अच्छा और बुरा क्या होता है, और मुझे पता नहीं कैसा प्रश्न पूछना चाहिए और ऐसे क्या पता चलेगा कि ये अच्छा है और बुरा है।
So he stared in my eyes and said, जब आप कोई भी काम करोगे तो उसमें विघ्न आएंगे, यदि वो अपने आप चले जाएं और आपके हर्डल्स दूर हो जाएं तो वो अच्छा काम है, और अगर आपके विघ्न बढ़ते जाएं तो वो काम बुरा है। जब विघ्न हट जाएंगे इसका मतलब कि नेचर इज हेल्पिंग यू। एक्चुअली जब हमने ये शुरू किया तो मुझे बड़े अप्रिहेंशन था कि ये कैसा होगा, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। कछारा साहब इज द ट्रिगर टू स्टार्ट ऑल दिस, और वो सारे अप्रिहेंशन दूर हो गए और मेरे विचार में इट वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो संत ने कहा कि नेचर इज हेल्पिंग अस, तो नेचर इज हेल्पिंग जैनिज्म एंड आस्किंग अस टू प्रोसीड फर्दर। तो इस प्रकार अभी आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज इट्स गेटिंग लेट। इसमें कई सहयोगियों ने हमें मेड इट पॉसिबल फॉर दिस टू हैपन। तो आई like to felicitate our sponsors. I request Shogal Chand ji साहब to just please वो उदय boxes. सर एक मिनट लगे सर, let us express our gratitude. नहीं नहीं, ये जस्ट भाई जल्दी करो भाई। हाँ नहीं, आई कम दैट this small token of our appreciation so that you continue to remember us. I'm very happy to. Next one is next, I would like to call upon sponsors. Science and spiritual research. वही बोल रहा हूँ। Next, I'll request Dr. ओकाना साहब आप आइए इधर। उसके बाद नाम बोलिए ना आप। उसके बाद नाम कछारा साहब जी, आप आइए इधर। हेलो। हाँ, except those who feed us. We always remember who gives us feed all life, and I think I would like to express my appreciation for organizing, hosting our meals. My pleasure and our pleasure. Agarwal Sahab is not here, and Favorite Press and Vigyan Samiti, these four organizations took care of our meals here, and we are really very appreciative of their gesture. You see, things work out on their own. Actually, out of nowhere, Sharath Thondi called me up and said he will come and help us. So I would want to express my appreciation. Ji, come here. And appreciate. He just called me up in time and he said he will come and take care. Thank you. So, I really appreciate that. So, thank you very much. I can't really thank everybody, but I want to say that this meeting would not have been possible without the support of Uday Makwana and Purvi Dave. They really came up to the occasion. And I would like to, as a token of my appreciation, Uday, sir, please.
Actually, I would request Jitu bhai. I mean, they took care of everything and made my job easier. Last but not the least, Puri Dave. I think she really took this as a personal challenge. I am very happy that she has grown up to the occasion and took care of everything. On behalf of all of you, I really express my appreciation. So after this is over, I come to the most important part. I come to the most important part of this 2-day exercise, and that is what do we take home? What is the road forward for us? I request Sushma ji, who has been painstakingly collecting all the suggestions, to summarize briefly what is the message we give to the Samaj from here. Challenges to Jain philosophy in the modern scientific and social context. आधुनिक वैज्ञानिक एवं सामाजिक संदर्भ में जैन दर्शन को चुनौतियां, और आगे हमने बात की है समाधान पर भी। इस विषय पर जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स अहमदाबाद तथा डिपार्टमेंट ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर द्वारा आयोजित तथा विभिन्न संस्थाओं के सौजन्य जैसे जैन इंडिया ट्रस्ट चेन्नई, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, जीव एकेडमी मुंबई, श्रुत रत्नाकर अहमदाबाद, विज्ञान समिति उदयपुर तथा वर्धमान एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि के सौजन्य से इस सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से लगभग 50 से अधिक विद्वज्जन तथा 50 से अधिक विद्यार्थियों ने 25 एवं 26 अप्रैल 2025 को भाग लिया। इस सेमिनार के इस अंतिम 8वें वैलिडिक्टरी सत्र में आप सभी का अभिवादन करती हूं, और मुझे ये अवसर दिया उसके लिए मैं आयोजकों की